سیالکوٹ تو زندہ رہے گا۔ ناظرین کرام، سیالکوٹ ہی نہیں پاکستان کا ہر شہر، قصبہ اور گاؤں زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ ہر وہ چیز حرام ہے جو آپ کو انسانیت سے برے کر دے۔ علم تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، ادب نہیں ہے۔ مولا کا فرمان ہے بہت سارا علم سیکھنے کی بجائے تھوڑا سا ادب سیکھ لو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اتنا بڑا آپ کا انداز مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا، ماشاءاللہ۔ آپ ذہین آدمی ہوں، میں قدر کرتا ہوں آپ جیسے لوگ۔ بلکہ سیالکوٹ کی فتح کا سہرا حضرت امام علی الحق امام صاحب المعروف رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر۔ یہ جس جگہ پر بیٹھے ہیں یہ کسی زمانے میں ایک تاریخی قلعہ تھا۔ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں آپ؟ اس کی ہسٹری کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہے آپ؟ یہ مائک لے لیں اور کچھ ٹپس یہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈائٹ بیلنس رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ریپوٹیشن آپ کی، جو اگر آپ مسلر چاہتے ہیں تو اس میں آپ نے ریپوٹیشن میں آنا ہے، ویٹ کم لگانا ہے، ریپوٹیشن زیادہ کرنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، بہت ساری دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ میں ہوں عباس علی۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیالکوٹ کے اس تاریخی قلعے کے بارے میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ اس قلعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 5000 سال قدیم قلعہ ہے جسے راجہ سل نے تعمیر کیا۔ ناظرین کرام، تفصیلات میں جانے سے پہلے آئیے چلتے ہیں لوگوں کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کے مقامی لوگ اس قلعے کے بارے میں کیا تفصیلات رکھتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں لوگوں کے پاس۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہے آپ؟ شکر اللہ۔ یہ مائک لے لیں اور کچھ تفصیلات بتائیں اس قلعے کے بارے میں کہ یہاں آپ ایک قلعہ جی، ہم مقامی ادھر کے رہنے والے ہیں، شہر کے اندر ہی، محلہ جیبرے کے۔ پہلے اپنا نام بتا دیں۔ میرا نام انجم پرویز ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ یہاں ایک دربار ہے، ہاں، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ پیر مراد علی شاہ کا دربار ہے، ان کی وجہ سے قلعہ جو ہے نا کھڑا ہے۔ اچھا، سمجھ گئے؟ پہلے یہ قلعہ کھڑا نہیں ہوتا تھا، دیواریں کھڑی نہیں ہوتی تھی۔ پھر جب انگریزوں کا وقت تھا، حکومت تھی، تو انہوں نے کہا کسی مسلمان کو پکڑ کر لاؤ، نجومیوں نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ وہ پھر یہ ایک پر وضو کر رہے تھے، ادھر سے انہوں نے پکڑ کر لایا، ان کی چیچی انگلی کا خون ادھر نی میں رکھا تو دیوار کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا، سمجھ گئے؟ شہید کرنے کے بعد پھر ادھر دفنا دیا گیا۔ اس کی وجہ سے قلعہ جو ہے نا یہ کھڑا ہے۔ اچھا، آپ کی کتنی عمر ہے؟ میری 70 ہے، 70 سال۔ جی جی جی۔ اتنا پتہ ہے کہ حکومت میں سن 47 سے پہلے سب ایک ہی تھے، انڈیا کی تھے، پاکستان کی، سب لوگ ایک تھے۔ اچھا، یہاں جو دفاتر ہے یہ یہاں کیا تھا؟ یہ تو پہلے تو ادھر مطلب ہے کہ وہی بڑے بڑے لوگ ہیں جو مطلب ہے کہ بادشاہ ٹائپ، وہی بیٹھتے تھے ادھر، جو سزائیں وغیرہ سناتے تھے، سمجھ گئے؟ ابھی تو وہ پولیس اسٹیشن بن گیا ہوا ہے نا۔ ادھر یہ یونین کا ڈسٹرکٹ کونسل ہے، یہ بن گیا ہوا ہے، ابھی آفس وغیرہ بن گئے ہوئے ہیں، سمجھ گئے؟ وہ آگے کالج بن گیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، میرا نام ہے استاد نعیم باجوہ، پیشے سے میں انسٹرکٹر ہوں۔ یہ پیر مراد علی شاہ صاحب کا قلعہ ہے،
ठीक है। ये किला था साला सिंह जो था ना यहाँ पे, जो पहले से जिसके नाम के ऊपर सियालकोट है, ठीक है। ये साले सिंह के नाम के ऊपर सियालकोट का नाम पड़ा हुआ है। वो सिख था, ठीक है। और किले की तारीख ये है कि ये इसकी दीवारें नहीं थी खड़ी हो रही, ठीक है। फिर वो एक मुसलमान थे, पीर मुराद अली शाह साहब जो थे, ठीक है। ये उनके पंडित जो पंडित थे इनके, उन्होंने कहा था कि किसी मुसलमान की ना रत चाहिए, जिसे खून बोलते हैं, थोड़ा सा, फिर दीवारें खड़ी होंगी। और ये मुसलमान था, उन्होंने कहा कैसे पता चलेगा, ये पुल आया कि नहीं, जो पुल आया के ऊपर जो आता है, अब ये बड़ा साफ़ पानी होता था किसी टाइम पे, ठीक है। तो उन्होंने कहा था पंडितों ने कि आप सिपाही उधर भेजें, जब वो वज़ू करेंगे ना, सर्दियों के दिन थे, तो वो पानी नीम गर्म हो जाएगा, तो उसकी निशानी है वो मुसलमान है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जाके ना उस मुसलमान को ना लेके आ गए। तो उन्होंने कहा कि यार आप ऐसा करो, थोड़ा सा मेरा खून ले लें, आपकी दीवारें नहीं गिरेंगी किले की। इन्होंने, वो बादशाह जो था वो लालच में आ गया, उसने कहा जी अगर इसकी उंगली के खून के ऊपर दीवारें खड़ी हो गई हैं तो इनका सर कलम करके इस किले के नीचे दफना दिया जाए, तो ये तो क़यामत तक कभी किला ही नहीं हिलेगा, ठीक है। तो उनकी शहादत फिर इस तरह हुई थी। जिम ज्वाइन करने वाले दोस्त हैं उनके लिए कुछ टिप्स बताएं। टिप्स ये है कि आपने अपनी डाइट बैलेंस रखनी है, ठीक है। रेपुटेशन आपकी, जो अगर आप मसलर चाहते हैं तो उसमें आपने रेपुटेशन में आना है, वेट कम लगाना है, रेपुटेशन ज़्यादा करने हैं। अगर थोड़ा साइज़ गेन करना चाहते हैं तो वेट थोड़ा ज़्यादा लगाना है, रेपुटेशन कम लगाने हैं, ठीक है। ये चीज़ है, मेन चीज़ है, आपने अपनी डाइट को ना वो बैलेंस में रखना है, ठीक है। जितनी डाइट बैलेंस में होगी उतने मसल जो है ना, इसमें आती है गुड फैट, एक आती है बैड फैट, ठीक है। पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा ये नहीं खाना, आपने गुड फैट कैलोरीज लेनी है, जैसे अंडे हो गए, चिकन हो गया, ब्रेस्ट हो गई, ठीक है, लेग हो गए, तो ये बॉयल चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं बॉडी बिल्डिंग में, ठीक है। ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, फ्रूट हो गया, ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका वर्कआउट बहुत अहमियत रहता है कि आपने वर्कआउट किस किस्म का करना है, बस ये चीज़ें। सरजमीन सियालकोट शुहदाए इस्लाम की धरती है, जिन्होंने अपने मुकद्दस खून से इस खित्ते को नूरे इस्लाम से मुनव्वर किया और दूर दूर तक इस्लाम का बोलबाला हो गया। इन्हीं शुहदाए इस्लाम में एक नाम हजरत मुराद अली शाह अलमारूफ पीर मुरादिया का भी है, जिन्हें कुफरस्तान हिंद में शहीद अव्वल होने का शर्फ हासिल हुआ। 1757 हिजरी में हिंदू राजा सल ने सलकोट में एक अजीमुशान कला की तामीर शुरू की। कला की शुमाली दीवार तामीर के बाद अगली सुबह खुद ब खुद जमीन बोस हो जाती। इस सूरत हाल ने राजा को सख्त परेशानी से दो चार कर दिया। बिल आखिर राजा सल ने तंग आकर हिंदू पंडितों और ज्योतिषियों को अपने दरबार में मदऊ करके उनसे कला की शुमाली दीवार के बार बार मिस्मार होने की वजह तलब की। ज्योतिषियों और नजूमियों ने काफी सोच विचार के बाद बताया कि अगर इस दीवार की बुनियादों में किसी मुसलमान का खून बहा दिया जाए तो फिर ये दीवार कभी नहीं गिरेगी। राजा सल के हुक्म पर एक मुसलमान की तलाश शुरू कर दी गई। काफी तगोदो के बाद मुराद अली नामी एक नौजवान तारीखी नाला ऐक के किनारे वजू करते पकड़ा गया, जिसे राजा सल के दरबार में पेश कर दिया गया। आपने अपने पकड़े जाने की वजह दरियाफ्त की तो बताया गया कि किला सियालकोट की शुमाली दीवार को बरकरार रखने की खातिर इसकी बुनियादों में मुसलमान का खून निछावर करने की जरूरत है, जिस पर आपने बजाते खुद अपनी एक उंगली शहीद करके इसका खून किला की शुमाली दीवार में निछावर कर दिया। और यूं कुदरते खुदाबंदी से किला सियालकोट की शुमाली दीवार थम गई, जिससे राजा सल और उसके साथी बेहद मुतासिर हुए। राजा ने सोचा कि जिस शख्स की उंगली के खून की इस कदर तासीर है तो उसके सर के खून में क्या कुव्वत होगी। चुनाचे मुतफिका फैसला के बाद मुराद अली नामी मुसलमान को राजा सल ने जबरदस्ती शहीद करवाकर उनके सरे मुबारक को ज़ेरे तामीर किला सियालकोट की शुमाली दीवार में दफन कर दिया गया। और यूं दीवार अपनी जगह पर कायम रही और बिल आखिर किला सियालकोट पाए तकमील को पहुंच गया। हक तमाम या ले है हक तमाम या ले है। अपना तारुफ कराएंगे, क्या नाम है आपका? तो यार तारुफ क्या करना है, बंदे की गुफ्तगू ही इसका तारुफ होता है। नाम तो घर वालों ने मोहम्मद अरशद रखा था, लेकिन मुर्शद अंसारी कहते हैं। अंसारी ज़ात नहीं, जबकि ज़ात हम समझ चुके हैं। वो अंसारे मदीना से ये निज़ाम चला है, जो उनकी सुन्नत पर तय अमल है ना, समझ लो वो उसी लिस्ट में आएगा।
अंसार मदीना, उसमें सारी ज़ातें वगैरह थी, लेकिन क्या था कि अमल अपना अपना अच्छा कर लेगा तो उसका रिज़ल्ट भुगत लेगा, बुरा किया होगा तो उसका भी रिज़ल्ट भुगत लेगा। ये तो मालिक का फैसला है, मेरी आपकी बात ही नहीं है। जो बीतना है वो काटना है, जो करना है वो बरना है। इस मौके पे मुझे सागर से किस्सा भी ज़रूर याद होते हैं। कुछ लोग बो कर कांटे फूलों की तोप को रखते हैं हर ये तो बातें चलती रहेंगी, बातें कि है ये अदबी गुफ्तगू है। यहाँ पे अदब मुझे नहीं नज़र आ रहा, मैं भी बेअदब था, लेकिन अब अदब नज़र आया तो पता चला हर कदम पे बेअदबी हो रही है, जाने अनजाने में। क्योंकि असल बात का पहला अमल ही अदब है, जिसके लिए लामा साहब ने अपनी शायरी में कहा हुआ है कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये हाकी अपनी फितरत में ना नूरी है नारी। इस शेर के वजह से लामा साहब की शायरी का मुझे भी उस वक़्त पता नहीं था, समझ नहीं थी। अच्छा, आप यहाँ मजावर हैं, क्या हैं, क्या हैं यहाँ पे झाड़ू का शौक मैंने सुन रखा था कि ये सुन्नत हज़रत बिलाल हबशी की, जिनके लिए सूरज 3 दिन नहीं चढ़ा, वो घर में सरकार के घर में झाड़ू किया करते थे। तो ये इतनी बड़ी इबादत है, लेकिन नियत से करे तो मुझे इतना पता बेड़े पार हो जाएं। मैं अपने घर की भी कितनी सफाई रखता, तो मुझसे के घर को अपना घर समझो तो फिर मामला। मैं सही शबीर सैन सरकार लाहौर में है, नवाज़ी अड्डे की बैक साइड पे इनका आस्थान है। माई बाप का रोज़ा, बकर मंडी, खुला मैदान, बड़ी मस्जिद, बड़ी मीनार है, आम हर किसी से भी पूछ सकते हैं। वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं सरकार के अपने दर पे। जो बात लिखी हुई है सुनने वाली बातें हैं, ना बढ़ो अदब की हद से, वही अदब की जो बात हो रही थी, ना बढ़ो अदब की हद से, ये दियारे मुस्तफ़ा है। ना बढ़ो अदब की हद से, ये दियारे मुस्तफ़ा है। मेरी बेखुदी से कह तो ये मकाम होश का है, यानी कि हाज़िर का। मुशहूद हाज़िर है ना, जब ड्यूटी लेते हैं तो फिर हाज़िर कर देते हैं, जब हाज़िर हो जाता है फिर नाज़िर भी होना शुरू हो जाता है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस दरबार शरीफ में आप जब से यहाँ रह रहे हैं, इससे पहले आपने दुनिया में क्या देखा और क्या सीखा, और यहाँ आने के बाद आपने क्या क्या तब्दीलियाँ आई? मैंने ये महसूस किया कि आधी दुनिया की सैर करवाएगी, इसीलिए कि ये तो देखो दुनिया की तरफ आगे कितनी आगे निकल गई है, घूम चुके हैं। कितनी आगे निकल गई है, और हम कहाँ पे खड़े हैं। मुझे तो अपनी तरफ देखना पड़ेगा। हम हालत के उस घड़े में खड़े हैं जहाँ पे कोई किसी को कुछ बताने वाला नहीं है, थोपने वाला है। थोपना और चीज़ होती है, बात बतानी और चीज़ होती है। समझाने बैठोगे सगे भाई को नहीं समझा पाओगे। मैं इंग्लैंड गया, मैं अमेरिका गया, मैं सारे मुल्कों में गया, जाके देखा यार वो लोग कामयाब क्यों हैं। देखा उन्हें आपको से अच्छी बात मिलनी चाहिए। एक मैंने बताया ना, एक मन में अपने मन में डूब कर पा जाओ और आगे ज़िंदगी। इस एक बात पे कुरान पाक तर्जुमे वाला खरीद लाया, मालिक ने किसी को मना नहीं किया, और वक्त के वलियों ने इस बात की तईद की है कि अन खोजी मोमन नालो काफिर खोजी चंगा। खोज तो लगा रहा ना, कभी ना कभी वो लगा रहा, जैसे उसको असल बात मिल गई, उससे बेहतर मुझे वैसे भी नफ्सियात का डॉक्टर बड़ा सफाई पसंद होता है। ठीक है, जे का रब मिलता, वक्त के वलियों ने बोला हुआ है, जे का रब मिलता नाते हैं तोते ते मिलता मच्छियाँ डडुओं हूँ, जे रब मिलता जंगल बेले ते मिलता बच्चियाँ गाँव हूँ। बात तो ऐसी है। अब उन बातों को मैं कैसे रिजेक्ट कर सकता हूँ, मेरा दिलो दिमाग वो तो गवाही दे रहा है कि कुरान और हदीस के मुताबिक बात है। ये अगर वो खाली सही के रहने, ये तो हर मच्छी भी हर वक्त पानी के अंदर रहती है, उससे तो जो उसे रब उसे भाई ये पता कि खुराक पहुँच रही है, वो उस तक पहुँच जाती है। बाकी मैंने ये देखा कि यार वो लोग असल इस्लामी सूल जो है ना, उन लोगों ने अपना रखे। जिनको मैं मिला हूँ उन्होंने मेरे सामने झूठ नहीं बोला। आज तो हर कदम पे झूठ, जो कि नमाज पहली शर्त ही कहती है झूठ से बच। मैं भी घर से झूठ सच सीख के निकला, पता चला मार्केट में तो हर कदम में झूठ बोला जा रहा है। मैंने तो जो देखना मैंने तो वो बयान करना, अगले ने बुरा भी कहना, गाली गलौज भी दे रही, किड़ भी रखनी, किस वक्त मौका मिले तो चित के रख दो। इस मौके पर मुझे एक शेर याद आ गया, मेरी ज़िंदगी का कारवां तो चल रहा है उस ज़ात के भरोसे, मेरी ज़िंदगी का कारवां तो चल रहा है उस ज़ात के भरोसे, वरना ये लोग तो छीन लेते मुझसे मेरी हर सांस। जब सोच बदली तो फिर क्या हुआ, क्या कहता है शायद कि छीन लो मुझसे मेरी हर सांस मगर है दोस्त, ना छीनना कभी मेरे ज़मीर की आवाज़। वही असल में ज़िंदा दिली का नाम है। अक्सरियत मुर्दा दिल नज़र आएंगे क्योंकि बेअदब हैं, तो कहाँ पे वो असल बात मिले। यह कि हराम हलाल में फ़र्क क्या है। मैं क्या हर वो चीज़ हराम है जो आपको इंसानियत से बरे कर दे,
सीधी सी बात है। ये एक तहकीक के ज़रिए भी जो आपको सुनना है तो इसलिए मना किया गया है, वरना ज़्यादा राह में तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हम ना वो सरासर अल्लाह रसूल के मुखालफत में चल रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह रसूल के माने। मेरे अपने घर वालों का ये हाल है, मैं किसी और की बात क्या करूँ। तो यार आप अल्लाह रसूल का नाम नहीं जा रहे हो, उनकी एक भी कहें वो कह रहे झूठ छोड़ दो। छोड़ा किसने छोड़ा? कोई नहीं छोड़ा। फिर क्या है कि यार ये झूठ ही एक ऐसा है जिसका कोई हल नहीं है। सच का बोल बाला, झूठे का मुंह काला, ये बातें आप हमें समझ लगी इतनी उम्र के बाद। इस मौके पे फिर लामा साहब याद आ गए, वो कहते हैं कि मुझे समझना तेरे बस की बात नहीं इकबाल, इतनी बड़ी हस्ती इतनी बड़ी वक़्त के वाली दरवेश को कह रही है, मुझे समझना तेरे बस की बात नहीं इकबाल, सोच को बुलंद कर वरना सोचना छोड़ दे। इतना बड़ा गोर है अगर बंदा समझे तो। हाँ जी, बस सोचना कि सोच को बुलंद रख, यानी कि अल्लाह रसूल वाली बात रख, ताकि किसारे का भला हो जाए। जब अमन हो गया तो अंग्रेजों ने फसील से कले तक एक सड़क बना दी। आजकल कले तक आमदोरफ्त इसी सड़क के जरिए होती है। तारीख में पहली दफा अंग्रेजी अहद में इस कले की दिफाई हैसियत को खत्म करके इसे अमूर आमा के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। अंग्रेजी अहद में यहाँ थाना सिटी, दफ्तर म्यूनिसिपैलिटी, दफ्तर डिस्ट्रिक्ट बोर्डिंग हाउस और 1947 को लाइब्रेरी की बुनियाद रखी गई। कला सियालकोट पाकिस्तान के हिस्से में आया तो लाइब्रेरी और जिना हाल की असर नौ तामीर करवाई गई। ताहम अफसोसनाक बात यह है कि इस वक्त कले की हालत इंतहाई मखदूश है और तारीखी आसार तेजी से मिटते जा रहे हैं। नीज ये तारीखी कला सरकारी दफातर की आमाजगाह बन चुका है। अवामी हलकों की जानिब से कले को कौमी विरसा करार देने और इसे महफूज करने का मुतालबा किया जा रहा है। नाजरीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।